Dr. Nirja, we shall move ahead with the next part of the Yes. segment, which looks at the physical well-being of women and focused on the reproductive organ area, which comes into play million times in the life and has a very active role during the reproductive life. All of us know that it is under cared for, and women, especially who have given birth multiple times, even once or twice, would have suffered some injury, which is often subclinical, not realized, and often undiagnosed, and it stays with the women. I have heard, my own friends who are non-medical sharing with me that the whole area feels so different after childbirth. They're not able to pinpoint exactly, but they will say that it all has become different after childbirth. So to understand pelvic floor functioning better, and to know what best can be done by our women to guide our women constantly towards looking after the wellness of the pelvic floor, we have with us Dr. Komal Shah, a very brilliant young physiotherapist from MS University, Vadodara, practicing as a senior physiotherapist. Her specialty is musculoskeletal conditions, post-surgical rehabilitation, and other orthopedic conditions. Well, in fact, we have had other musculoskeletal specialists in our programs, but today we have somebody who specializes in pelvic floor rehab, and she is a practitioner for that. She has treated women with incontinence, etc., a very value add-on to the pharmacotherapy which we prescribe. And she also gives, yoga is also the core of her, practice strength, and women's health and fitness is very special for her. She has already written a book also, a big book for all aged women. I hope someday we can read it. So here is Dr. Komal for you with Kegel exercises for pelvic floor strengthening. We plan to do this segment in two parts. Today she will deal with the basics, and the next session sometime next month will be on the advanced segment. Thank you so much, Komal, for being here, and the floor is yours. Thank you, Dr. Nirja and Dr. Shobha and Dr. Pushpa for warm welcome. And I'm feeling I'm very much thankful for giving me this wonderful opportunity. So let's jump to the session fast. Kegel exercises is mainly for the pelvic floor strengthening exercises. और ये बेबी की डिलीवरी के बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम में, पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स के प्रॉब्लम में, और मेनोपॉज के साथ साथ जो पेल्विक फ्लोर वीकनेस आ जाती है उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। ऑनलाइन सेशन में पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे जिसमें हम कीगल एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, देखेंगे और उसको कैसे करना है ये समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानते हैं कि पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या होते हैं। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो मसल्स है जो आपके पेंटी का फ्लोर बनाते हैं, ठीक है। दोनों थाइस के बीच मूत्रा द्वार और गुदा द्वार के बीच के जो मसल्स है वो पेल्विक फ्लोर मसल्स है। अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे तो ये जो है वो हमारा आगे का पोर्शन है, ये पीछे का पोर्शन है, ये पूरी पेल्विक रिंग है और मूत्र द्वार, गर्भाशय द्वार और गुदा द्वार, ये तीन ओपनिंग है। तो मूत्र द्वार के सराउंडिंग्स जो मसल्स है, गर्भाशय द्वार के सराउंडिंग्स जो मसल है और गुदा द्वार के सराउंडिंग्स जो मसल्स है, उनको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में लिवेटर एनाई मसल, या तो सिंपल लैंग्वेज में कहे तो पेल्विक फ्लोर, जिसको हमें कीगल एक्सरसाइज देनी है तो ये पूरा पेल्विक फ्लोर बनाता है। दिस इज द फ्रंट portion of our pelvic ring. This one is the back portion, the spine. This is the pubic bone, and this is the whole pelvic ring. And the muscles what we are talking about for the pelvic floor muscles are the muscles that are surrounding the bladder, surrounding the uterus, and surrounding the rectum. So these are the muscles. To them, what we want to give the Kegel exercise. So अगर हम
इन मसल्स को, अपने ही पेल्विक फ्लोर मसल्स को आइडेंटिफाई करें, लोकेट करें। तो इसके लिए पेंटी रिमूव करके आप सर के नीचे 2 से 3 किलो रख दें और मिरर फीडबैक के साथ दोनों घुटनों के बीच मिरर को प्लेस कर लें। तो यहाँ पे आपको आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे। पेल्विक फ्लोर मसल्स को पाल्पेट करने के लिए आप फिंगर से अपने मूत्र द्वार, गर्भाशय द्वार और गुदा द्वार को फिंगर से पाल्पेट करें। उनके आसपास जो मसल्स है, मूत्र द्वार के आसपास, गर्भाशय द्वार के आसपास और गुदा द्वार के आसपास जो मसल्स है उनको फिंगर से टच करें, फील करें। तो हमने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को लोकेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, टच करके पाल्पेट भी कर लिया ना। अभी हम जानते हैं कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स का एक्शन क्या है। तो मूत्र द्वार के आसपास जो मसल्स है उनका एक्शन जानने के लिए जब आप यूरिन पास करते हो तो यूरिन को 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें और फिर से एक बार यूरिन को पास करें, फिर से एक बार यूरिन को रोक के रखें और फिर से एक बार पास करें। तो जो मसल्स आपके यूरिन फ्लो को रोकने के लिए जो टाइट हो रहे हैं, ये आपके वो मसल्स हैं जो मूत्र, जिनको पेल्विक फ्लोर के मसल्स है, जिनको हमें कीगल एक्सरसाइज देनी है। गुदा द्वार के आसपास जो मसल्स है उनका एक्शन जानने के लिए मानो कि आपको गैस पास करने का अर्ज हो रहा है या स्टूल पास करने का अर्ज हो रहा है, लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हो या किसी मीटिंग में बैठे हुए हो, आप उस अर्ज को रोक के रखते हो। आप गुदा द्वार के जो मसल्स है उनको स्क्वीज करके रखते हो, टाइट करके रखते हो। तो जो मसल्स आपके टाइट हो रहे हैं, ये मसल्स आपके पेल्विक फ्लोर के वो मसल्स है जिनको हमें कीगल एक्सरसाइज देनी है। वैसे ही गर्भाशय द्वार के आसपास जो मसल्स है उनका एक्शन जानने के लिए एक साफ सुथरी क्लीन फिंगर गर्भाशय द्वार के अंदर इंसर्ट करनी है। मेक श्योर करें कि आपके नेल्स अच्छे से कट हो। आप चाहो तो कोई लुब्रिकेंट जेल या कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम की हेल्प ले सकते हो जिससे आप इजीली फिंगर को अंदर इंसर्ट कर पाओ। उसके बाद फिंगर को आसपास जो मसल्स है उससे टाइट करने की कोशिश करें, उनको एक फर्म प्रेशर देने की कोशिश करें। तो जो मसल्स आपके टाइट हो रहे हैं, ये मसल्स वो मसल्स है जिनको हमें कीगल एक्सरसाइज देनी है। ठीक है, तो हमने मसल को आइडेंटिफाई करके लोकेट किया, ऑब्जर्व किया, पाल्पेट किया, उसको उसका मसल एक्शन भी देख लिया। अब जानते हैं कि इन मसल्स की स्ट्रेंथ कैसे चेक करें, अपने खुद के पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ कैसे चेक करें। ये बहुत ही इजी है और आप सब लोग घर पे कर सकते हो। तो मैं चाहूंगी कि टेस्टिंग जानने के बाद आज सब लोग अपने पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ खुद से चेक करें। इसके लिए क्या करना है कि फिंगर को गर्भाशय द्वार के अंदर इंसर्ट करना है और सराउंडिंग मसल्स जो है उनसे फिंगर को एक फर्म ग्रिप देने की कोशिश करें, टाइट करने की कोशिश करें। अगर आपको फिंगर पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है या लूज हग लग रहा है, दैट मीन्स कि आपके पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ पुअर है, आपको कीगल एक्सरसाइज की जरूरत है। और कीगल एक्सरसाइज के साथ साथ में पेल्विक फ्लोर मसल स्टिमुलेशन और इंटरफेरेंशियल थेरेपी की भी जरूरत है जो आपके पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करेगा। अगर फिंगर पे एक अच्छा सा प्रेशर बनता है, अच्छी सी ग्रिप आती है, मसल्स को टाइट करने पे एक नाइस हग फील होता है, दैट मीन्स कि आपके पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, अच्छी है और आपको थोड़ी और कीगल एक्सरसाइज की जरूरत है। अगर फिंगर पे प्रेशर देने से एक टाइट हग फील होता है, एक फर्म प्रेशर के साथ अगर आप कैपेबल हो कि फिंगर को नेवल की तरफ लिफ्ट कर पाओ, अंदर खींच पाओ, दैट मीन्स कि आपके पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ एक्सेलेंट है, बहुत ही अच्छी है। यू डोंट नीड एनी एक्सरसाइज। हम एक मजाक मजाक में बोलते हैं कि ऐसे जो 3 हग है, पुअर हग, नाइस हग एंड टाइट हग, यानी फिंगर को लिफ्ट करके अंदर खींच रहा है, तो हम 3 हग को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो पुअर हग है वो सांस की हग है, यानी आपको फील नहीं होता है हग। ठीक है, दूसरा जो हग है वो माँ का हग है, नाइस हग, यानी गले से गले मिलते हैं
तीसरा जो हग है वो है प्रेमिका का हग है। अच्छे से टाइट हग देके फिंगर को अंदर खींच लेता है, बोलता है अभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये 3 हग है जिसमें हमें जो चाहिए वो है प्रेमिका का हग, बहुत ही टाइट हग और फिंगर को नेवल तक अंदर खींचे, उतना टाइट हग। तो ये एक सिंपल टेस्ट है जो आप सब लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। नाउ कम टू द कीगल एक्सरसाइज कि उसको कैसे करना है। कीगल एक्सरसाइज के लिए आप फिंगर को, जो हमने मसल एक्शन देखा वही चीज हमें एक्सरसाइज में भी इंप्लीमेंट करनी है। कीगल एक्सरसाइज जो है वो 2 तरीके से की जाती है, स्लो कीगल और फास्ट कीगल। स्लो कीगल किस लिए की जाती है कि जब पेल्विक फ्लोर का स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बिल्ड करना है तो उस टाइम पे स्लो कीगल की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि आपको यूरिन लंबे टाइम तक होल्ड करना है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, किसी मंदिर में बैठे हो, कोई मीटिंग में बैठे हो, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रहे हो, तो उस टाइम पे यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्लो कीगल एक्सरसाइज काम करती है। वैसे ही फास्ट कीगल एक्सरसाइज कब काम करती है, जब हमको पेल्विक फ्लोर मसल्स का एक क्विक एक्शन चाहिए, एक प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए, एक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे कि आपने छींक खाई या आपने खांसी खाई, जोर से हंसे, या फिर आपने झुक के कोई चीज लेने की कोशिश की, या तो आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स एक क्विक एक्शन के साथ काम करने चाहिए, एक फायर मिलना चाहिए। तो उसके लिए फास्ट कीगल एक्सरसाइज काम करती है। स्लो कीगल एक्सरसाइज का हम एक बार देखते हैं कि कैसे की जाती है। स्लो कीगल एक्सरसाइज के लिए गर्भाशय के मुख में फिंगर को इंसर्ट करें, 1.5 से 2 इंच तक अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आप ऐसा इमेजिन करें कि आप कोई एक लिफ्ट में हो, लिफ्ट का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है और लिफ्ट धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक जा रही है। तो इसी इमेजिनेशन के साथ फिंगर को इंसर्ट करके फिंगर के आसपास के जो मसल्स है उनको टाइट करने की कोशिश करें, जैसे कि दरवाजा बंद होता है लिफ्ट का, और फिंगर को टाइट करके ऊपर मसल्स से लिफ्ट करने की कोशिश करें, लेवल तक अंदर खींचने की कोशिश करें। इमेजिन करें कि अभी आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो और धीरे धीरे और टाइट करके लिफ्ट करते हुए आप टॉप फ्लोर पे जा रहे हो। इस कॉन्ट्रैक्शन को यहीं पे ही हम कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 5 सेकंड्स होल्ड किया या 6 सेकंड्स होल्ड किया। होल्ड करने के बाद उसको धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे, यानी कि हम टॉप फ्लोर से धीरे धीरे करके ग्राउंड फ्लोर पर वापस आएंगे और उसके बाद एक हल्का सा पोज देते हुए मसल्स को रिलैक्स करेंगे। पोज कितना देना है, हमने जितनी सेकंड्स उसको होल्ड करके रखा, कॉन्ट्रैक्शन टाइटनेस को होल्ड करके रखा, उतनी ही सेकंड्स हमें पोज देते हुए उतना 5 to 6 सेकंड्स के लिए रिलैक्स करना है मसल्स। तो ये हुई कीगल एक्सरसाइज। आप लिफ्ट की जगह अपनी पैंट जिप को भी इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि हम पैंट का बटन बंद करते हैं वैसे ही फिंगर को इंसर्ट करने के बाद गर्भाशय के आसपास जो मसल्स है उनको टाइट करने की कोशिश करें। पैंट की जिप हम धीरे धीरे करके बंद करते हैं, वैसे ही उनको टाइट करने के बाद ऊपर लिफ्ट करते हुए नेवल तक हम कॉन्ट्रैक्शन को अंदर खींचेंगे, फिंगर को अंदर खींचने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम एफर्ट पे हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे करके फिंगर को रिलैक्स करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करेंगे। तो ये हुआ स्लो कीगल एक्सरसाइज। फास्ट कीगल एक्सरसाइज कैसे करते हैं? फास्ट कीगल एक्सरसाइज में हमें एक ही सेकंड में मसल्स को टाइट करके लिफ्ट करना है, एक ही सेकंड में रिलैक्स करना है। एक ही सेकंड में टाइट करके लिफ्ट करेंगे, एक ही सेकंड में रिलैक्स करेंगे। तो ये फास्ट कीगल एक्सरसाइज है जिसमें हम एक ही सेकंड में टाइट करते हैं, एक सेकंड में रिलैक्स करते हैं। तो ये 2 टाइप से एक्सरसाइज की जाती है, स्लो कीगल और फास्ट कीगल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हम दिन में कितनी बार करेंगे? तो मिनिमम 3 से 4 बार एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। अभी जानते हैं कि एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन कैसे लेना है। तो मानो कि अभी आप अगर 5 सेकंड्स आप मसल को टाइट करके होल्ड कर सकते हो,
तो धीरे धीरे करके उसको 6 सेकंड्स पे लेके जाइए, 7 सेकंड्स पे लेके जाइए और धीरे धीरे 10 सेकंड्स पे लेके जाइए। इन द सेंस कि आप 10 सेकंड्स के लिए मसल्स को टाइट करके होल्ड कर रहे हो, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करें, 10 सेकंड्स के लिए पोज दें और उसके बाद फिर से रिपीट करें। तो ये एक्सरसाइज कम से कम आप 9 से 10 रिपीटेशंस एक ही साथ कर पाओ, उतना आपका एंड्योरेंस और रिपीटेशंस आ जाने चाहिए। वैसे ही फास्ट एक्सरसाइज भी आप 10 टाइम्स करो, टाइट करो, रिलैक्स करो, टाइट करो, रिलैक्स करो पूरी स्ट्रेंथ के साथ। तो ये आपका पूरा एक सेट हुआ। तो ऐसे दिन में 3 से 4 बार एक्सरसाइज को रिपीट करना है। और एक प्रोग्रेशन हम लेंगे कि जो भी एक्सरसाइज आपने लेट कर की है उसको आप इजीली बैठकर भी कर पाओ। एक बार प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्लो का देख लेते हैं, फिर बाद में बैठकर देखते हैं। निराली धीरे धीरे करके ब्रीदिंग एक्सेल करते हुए, श्वास बाहर निकालते हुए फिंगर्स के सराउंडिंग्स जो मसल्स है उनको टाइट करते जाइए। इमेजिन करें कि आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट के थ्रू आपको 3rd फ्लोर तक, टॉप फ्लोर तक जाना है। वहां पे ही होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। We will take pause for 5 seconds. फिर से एक बार सांस छोड़ते छोड़ते मसल्स को टाइट करें, ऊपर लिफ्ट करें, नेवल तक खींच कर ले जाए। होल्ड, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। वैसे ही फास्ट एक्सरसाइज लेंगे, होल्ड, टाइट, रिलैक्स, टाइट, होल्ड, रिलैक्स। कोमल, शी इज होल्डिंग दिस, ये इनहेल करने के बाद आफ्टर इनहेलेशन और एक्सेलिंग? एक्सेल करते करते मसल्स को टाइट करना है। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। गलत कहाँ पे है ये एक्सरसाइज? जब हम पेशेंट को भी दिखाते हैं तो वो गलती कहाँ पे करते हैं? ब्रीथ होल्ड नहीं करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल ही रखना है। आप एक बार अच्छे से टाइट कर रहे हो, ऊपर खींच रहे हो, उसके बाद ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है। तो गलती कहाँ पे लोग करते हैं कि अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स है वो बहुत ही टाइनी मसल्स है, बहुत ही छोटे मसल्स है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन आपको बाहर से नहीं दिखता है। लेकिन कई पेशेंट क्या करते हैं कि एग्जैजरेटेड एफर्ट देने के साथ साथ में इनर थाइस का यूज करते हैं, बटक्स का यूज करते हैं, पेट से जोर करते हैं या फिर ब्रीदिंग को होल्ड करके रखते हैं। तो गलत कीगल एक्सरसाइज नहीं करनी है। मेक श्योर करें कि आपका सिर्फ और सिर्फ पेल्विक फ्लोर ही टाइट हो, बाकी के सारे मसल्स, आपके इनर थाइस के मसल्स, बटक्स के मसल्स, आपके टमी के मसल्स रिलैक्स रहे। आपको ब्रीदिंग होल्ड नहीं करना, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। एक बार निराली गलत वाला करके दिखाओ। तो आप ये जो देख रहे हो, निराली ज्यादा एफर्ट देने के साथ साथ में थाइस का भी यूज कर रही है, पेट के मसल्स को भी टाइट कर रही है। तो ये चीज नहीं करनी है, सिर्फ आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स ही टाइट होंगे और ये बहुत ही टाइनी कॉन्ट्रैक्शन होता है जो आपको शायद बाहर से ना दिखे। और ये टाइट करना है आफ्टर ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट? नहीं, एक्सेलेशन के साथ में, क्योंकि अपना पेल्विक डायफ्राम जो है वो एक्सेलेशन के साथ में अपलिफ्ट होता है। ठीक तो है, हमें एक्सेलेशन के साथ में ऊपर लिफ्ट करना है। ठीक है, और इनहेलेशन के साथ में वो डिसेंड होगा। राइट, थैंक यू। जैसे हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग में करते हैं। तो एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन हम रिपीटेशंस के साथ में ले सकते हैं, 5 रिपीटेशंस टू 10 रिपीटेशंस जा सकते हैं। स्लो फास्ट दोनों में प्रोग्रेशन करना है। वैसे ही बैठकर भी हम एक्सरसाइज ले सकते हैं। तो जैसे आपने ज्यादा प्रैक्टिस की, उसके बाद आप टीवी देखते देखते या तो फिर न्यूज़पेपर रीड करते करते, कोई काम करते करते भी कीगल एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। नीचे नेपकिन का एक रोल बनाकर
पेरिनियल फ्लोर के नीचे रखना है ताकि आप उसको फील कर पाओ। तो मूत्र द्वार और गर्भद्वार, गर्भाशय द्वार, गुदा द्वार, तीनों को के नीचे ये नेटिंग का रोल रहेगा। इसी पोजीशन में एक्सेल करते हुए पेल्विक फ्लोर को टाइट करेंगे, लिफ्ट करेंगे। आपको टेक्टाइल स्टिमुलेशन के साथ में पता चलेगा कि नेटिंग रोल से ऊपर आपका पेरिनियल फ्लोर ऊपर उठ रहा है। होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स के लिए, धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। 5 सेकंड पोज लेते हुए फिर से एक बार पेल्विक फ्लोर को टाइट करें, नेक से ऊपर उठाए, होल्ड फॉर 5 सेकंड्स, रिलैक्स फॉर 5 सेकंड्स। तो इस पोजीशन में आप स्लो और फास्ट दोनों कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये जो था वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कीगल एक्सरसाइज का। नेक्स्ट सेशन में हम कीगल बॉल के साथ कीगल एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं और मसल स्ट्रेंथनिंग के साथ कैसे कर सकते हैं, एक बार एक्सरसाइज सीखने के बाद उनको फंक्शनल एक्टिविटीज में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो देखेंगे। मैंने अपनी बुक में कीगल एक्सरसाइज का एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पूरा एक सेक्शन जो है वो कीगल एक्सरसाइज पे है। तो ये जो मेरी बुक है, द बिग बुक फॉर ऑल एज वुमेन, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस बुक की स्पेशलिटी ये है कि इसमें मैंने एक्सरसाइज का एक पूरा वीडियो डाला हुआ है डिजिटल वर्कआउट के साथ में। तो ये बुक का जो QR कोड है वो स्कैन करते ही ये वीडियो YouTube पर ऊपर होता है और इसमें मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है डिजिटल वर्कआउट के साथ में कि स्टेप बाय स्टेप कीगल एक्सरसाइज कैसे करनी है। सो थैंक यू दीप्ति एंड निराली फॉर असिस्टिंग मी इन दिस वीडियो। We have 2 questions here. And एक क्वेश्चन तो ये है, if the pelvic floor gets strengthened by slow Kegel exercises, अगर pelvic floor slow Kegel exercises के साथ strengthen हो रहा है, then why do we need a faster one? हमें एक faster one की क्यों जरूरत है? As the already strengthened muscles will help us during emergency. जैसे हमारा जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, ठीक है, हमारी जो इंट्रा एब्डोमिनल कैप्सूल है वो फ्रंट में हमारे एब्डोमिनल मसल्स है, बैक में मल्टीफिरस, ऊपर डायफ्राम कैविटी है, नीचे अपना जो है ये पेल्विक डायफ्राम है। तो जब भी हम खांसी खाते हैं, जोर से छींकते हैं या फिर वेट लिफ्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स है वो सबसे पहले फायर होते हैं, वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसीलिए कभी यूरिनरी लीकेज नहीं होता है, दो द ब्लैडर इज फुल। तो यही एक चीज है कि यूरिनरी स्ट्रेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स है, उसमें क्या होता है कि ये मसल्स वीक होने के कारण जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट एक्शन करते हो, झुकते हो या वेट लिफ्टिंग करते हो या छींक खाते हो, तो उस टाइम पे ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो है वो फेल होते हैं फर्स्ट टाइप होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, और इसी रीजन के कारण उनको यूरिनरी लीकेज का प्रॉब्लम रहता है। तो दिस इज द ओनली रीजन कि जो फास्ट एक्शन हमको चाहिए, एक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए पेल्विक फ्लोर मसल्स के टाइट होने के लिए, तो वो हमें फास्ट कीगल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने से मिलता है। और यही चीज हम पेशेंट को जब एडवांस कीगल एक्सरसाइज करवाते हैं कीगल बॉल के साथ, तो यही प्रैक्टिस हम उनको करवाते हैं कि एक बार आप पेल्विक फ्लोर को टाइट करें, अंदर खींचे और उसके बाद आप वेट लिफ्ट करें। जब भी आप छींक खाते हो तो ये आप प्रैक्टिस बार बार करें कि पहले पेल्विक फ्लोर को टाइट कर ले, उसके बाद छींक खाए। तो जैसे पेशेंट ये प्रैक्टिस रूटीन लाइफ में लाता जाएगा, वैसे वैसे उसको ये यूरिनरी लीकेज का जो प्रॉब्लम है वो ग्रेजुअली सॉल्व होता जाएगा। या और डॉक्टर कोमल, एक और क्वेश्चन है, is it necessary to insert the finger to do these exercises? क्या ये जरूरी है कि फिंगर इंसर्ट करना है to do these exercises? Because all these years we have taught our patients without inserting the finger, क्योंकि हमने बहुत सालों से बिना फिंगर इंसर्ट किए अपने पेशेंट्स को ये कीगल एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। हाँ, ये जो फिंगर हम इंसर्ट करते हैं तो उससे एक सेंसरी फीडबैक मिलता है।
आपकी फिंगर पे आपको पता चलेगा कि आप कितना जोर दे रहे हो, कितना प्रेशर दे रहे हो। हमने जो 3 ग्रेड अभी समझे, पुअर हग यानी लूज हग, नाइस हग और टाइट हग। ठीक है, तो टाइट हग हमको कब पता चलेगा? जब हम फिंगर इंसर्ट करेंगे खुद की। वैसे हमारे जो थियोरेटिकल प्रैक्टिस में जो आता है उसमें टोटल 5 ग्रेड्स है, यही चीज के 5 ग्रेड्स है, बट पेशेंट को सिंपल समझाने के लिए हम उसको 3 ग्रेड में समझाते हैं। तो अगर आप फिंगर इंसर्ट करोगे खुद की तो ही आपको पता चलेगा कि आप कितना फिंगर को टाइट करके लिफ्ट कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल तो पता ही नहीं चलेगा कि मसल्स कितना वर्क कर रहे हैं। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप फिंगर को पुट Yeah, करो। I ऊपर think फिंगर का ये correct, सेंसरी correct. फीडबैक आपको पता चलता है, उसके बाद Yes. कीगल बॉल भी इजीली रख सकते हो। कीगल Yeah. बॉल के साथ में भी पता चलेगा कि आप कितना बॉल को लिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि कीगल बॉल की जो टेल है वो बाहर से हम पकड़ के रखते हैं। तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन कि कीगल बॉल के साथ फर्दर स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं कि हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो सिंपल एक्सरसाइज ले, 1 kg वेट के साथ में ले, प्रोग्रेशन करते हुए 3 kg वेट के साथ में करते हैं, तो ये फर्दर स्ट्रेंथनिंग करता है मसल्स की। तो वही स्ट्रेंथनिंग आप खाली खाली करोगे पता नहीं चलेगा। अगर आपने फिंगर से सेंसरी फीडबैक के साथ में किया तो एग्जैक्ट पता चले कि आप कितना प्रेशर दे रहे हो। उसके बाद अगर आप कीगल बॉल रखते हो 20 ग्राम का, 40 ग्राम का, उसके बाद 80 ग्राम का, तो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स और भी स्ट्रेंथन होते हैं और भी बिल्डअप होते हैं स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। Yeah, I think scientifically what you're saying is holding good, Komal. I think there is very, very strong research in the area of biofeedback physiotherapy for pelvic floor relaxation. And I think those gynecologists who are familiar with, of course, all of us have read it, Till Linde's Gynecology. There's one entire chapter on biofeedback, or one segment of a chapter, what I am remembering, is on biofeedback, and what you are saying is conforming to that. और आपने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात कही अच्छे से, बट एक्चुअली फ्लेटस इनकॉन्टिनेंस एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस में भी केजल्स एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, एंड नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशन थ्रू एक्सरसाइजेस ये ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है फॉर फ्लेटस एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस रादर देन फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसके लिए ज्यादा सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो नीरजा, आई थिंक योर क्वेश्चन हैज kind of opened the minds of gynecologists. It has made it very, very clear why the intervention of the woman's own digit is needed to get a biofeedback. I think that was a very brilliant interaction. Yes, thank you for that question. There's one comment by a user. She says that I think we can use in the beginning only, as later on we know how much pressure has to be applied. उन्होंने ये कहा कि हमें शायद ये फिंगर अर्ली टाइम्स में यूज करना है, उसके बाद तो हमें पता ही है कि कितना प्रेशर अप्लाई करना है। तो डॉक्टर कोमल, आपका इसके बारे में कुछ लास्ट पॉइंट है? वुड यू लाइक टू? हाँ, तो देखिए, बिगिनिंग में समझने के लिए सेंसरी फीडबैक चाहिए कि हम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए फिंगर तो रखनी है, इंसर्ट करनी है, ताकि हमको पता चले कि हम पेल्विक फ्लोर के मसल्स को कितना टाइट कर रहे हैं। उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको अच्छे से आप टाइट करके फिंगर को लिफ्ट कर सकते हैं, यानी आपकी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ आ चुकी है, उसके बाद यू स्विच ओवर टू द कीगल बॉल। कीगल बॉल 20 ग्राम से शुरू करके 80 ग्राम तक आते हैं। तो फर्दर स्ट्रेंथनिंग के लिए आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट यूजफुल थिंग। कीगल बॉल है, वजाइनल कोन आते हैं, तो उसके साथ आप फर्दर स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो। और उस नेक्स्ट सेशन में आप ये और डिटेल में जानेंगे कि कोर मसल्स का इंपॉर्टेंस भी बहुत ही है।